Okay, friends, after solving basic questions relating to final accounts that we did in our last two, three lectures, now we are going to start with the next account. The name of this account is manufacturing account. Now, what is a manufacturing account? For this purpose, we have to understand about whole is broadly classified into two types. So, our business community, आवाज ब्रेक हो रहा है. Is it clear now? हाँ, thank you. So I was telling one basic logic that the entire business community, if you look at it, it can be broadly classified into two categories. One is a trader and other is a manufacturer. You have been using these words quite often nowadays. अभी तक आप लोगों ने कई बार ये शब्दों का प्रयोग किया हुआ है. Now if we try to understand the basics manufacturer, if we try to understand the basics carefully, you also know the reasons or the difference. What exactly do we mean by a manufacturer and who is a trader? ये हम लोग को पता है. Can anybody from you like to tell the difference between a trader and a manufacturer? क्या फर्क है कोई बताना चाहेगा? बिजनेसमैन क्या करता है, सॉरी ट्रेडर क्या करता है और मैन्युफैक्चरर क्या करता है? What is the difference between a trader and a manufacturer? Please show in your chat box. Hello, am I audible? हाँ. So I am asking, a trader और manufacturer ये दोनों में फर्क क्या है शब्दों में? Manufacturer produces the goods, trader buys and sells the goods. Okay, very good. So you are pretty clear with the definition. You know that a trader, what does he do? He does the activity of buying and selling of goods. Whereas a manufacturer, if we try to understand, he, what does he buy? He buys raw materials. क्या खरीदता है वो? Raw material. Converts it into finished goods and sells finished goods. Now, when we talk about a trader and say buys and sells goods, then you have to understand we are talking about which goods? We are talking only about finished goods.
हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं वहां पर? सिर्फ फिनिश गुड्स। आप कोई भी दुकान, जनरल स्टोर्स जो आपके सामने दिमाग में आता है, मोबाइल स्टोर, कपड़े का दुकान, कोई भी चीज अपने दिमाग के सामने लेके आओ, एनीथिंग दैट यू फाइंड, that person will be called as a trader. He can be a wholesaler, he can be a retailer. The word trader includes wholesaler as well as retailer also. स्टॉकीज, सुपर स्टॉकीज, जो भी रहेगा। मैन्युफैक्चरर को छोड़कर बाकी सब लोग ट्रेडर कैटेगरी में आ जाते हैं। मैन्युफैक्चरर वो बंदा है जो रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है एंड बेचते वक्त फिनिश गुड्स बेचता है। दोनों में एक बात कॉमन है, अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो बोथ ऑफ देम ऑलवेज सेल फिनिश गुड्स। दोनों बेचते क्या है? फिनिश गुड्स ही है, लेकिन दोनों परचेज क्या करते हैं, इसमें बहुत अंतर है। और एक चीज और आप लोग इन जनरल याद रख लो, द प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स is called as, बोलो क्या बोलते हैं? The place where raw materials is converted into finished goods is called as dash. What is that place called as? The place where raw materials gets converted into finished goods is called as dash. Yes, very good. Not industry. It is called as factory. बेसिक बातें थोड़ा थोड़ा समझने को कभी कभी गड़बड़ होता है, बट ध्यान में रख लेना। Now friends, when final accounts of a manufacturer is prepared, अगर हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो क्या होगा? रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट के पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, देन रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चौथा ओनर्स कैपिटल अकाउंट, और पांचवा हमारा बैलेंस शीट। ये सब रेगुलर रहेगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आज हम लोग को डिटेल में समझना है कि क्या इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। पहला सवाल आता है, हम लोगों ने हमेशा सीखा है कि जरूरत क्या है, व्हाई शुड वी प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, व्हाट इज द रीजन? तो उसका जवाब है, अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट is prepared to calculate something called as cost of production. Why do you prepare manufacturing account, my dear friends? Manufacturing account is prepared to calculate cost of production. अब cost of production कहाँ से और कैसे मिलेगा? Cost of production is nothing but all the expenses which are incurred to convert raw material into finished goods. ये खर्चा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं what is called as cost of production. So the cost of production is a sum total of all expenses incurred to convert raw materials into finished goods. Does everybody agree with what I am saying? Do you all agree with what I say?
तो इससे हमारे आंसर में क्या फर्क पड़ेगा मेरे दोस्तों, बहुत केयरफुल रहना। अब मैन्युफैक्चरर खरीदता क्या है, याद रख लेना। अभी आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में अगर वर्ड दिखा परचेज, तो मैन्युफैक्चरर क्या परचेज करेगा मेरे दोस्तों, व्हाट विल ही परचेज, रॉ मटेरियल। तो परचेजेस लेक्चर मध्ये I'm sorry for the disturbance. So if we are talking about a manufacturer, remember now in trial balance the word purchase will represent purchase of raw material, so naturally it will be debited to which account, manufacturing account. मेरा एक सवाल है आपसे, क्या कोई मैन्युफैक्चरर फिनिश गुड्स खरीदता है क्या, यस और नो, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। So there was one no and many of you given yes. What does that mean? कि पॉसिबिलिटी है। नॉर्मली हम लोगों ने बोला नॉर्मली मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीदता है, बट कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि सपोज मेरा एक पेन बनाने का या अभी मेरा मास्क बनाने का कंपनी है, मैं क्या मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मास्क। एक दिन में मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मान के चलो मैं 1 लाख मास्क बना सकता हूं, लेकिन मेरे को ऑर्डर आया 10 लाख मास्क उनको 5 दिन में चाहिए। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, मेरा कैपेसिटी है एक दिन में 1 लाख मास्क बना सकता हूं मैं, मेरे को ऑर्डर आया 10 लाख मास्क चाहिए 5 दिन में, क्या मैं ये ऑर्डर लेगा कि मैं ये ऑर्डर छोड़ देगा? टेक्निकली सोचने जाओ तो मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 दिन में 5 लाख होएगा, उससे ज्यादा मैं नहीं बना सकता हूं। तो ऐसे में आप बोलोगे बिजनेस छोड़ देगा, बट प्रैक्टिकली आदमी कभी भी ऐसा अपॉर्चुनिटी हाथ से छोड़ता नहीं है। मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूं, मैं अगर मास्क बना रहा हूं, तो मेरे कुछ ना कुछ दोस्त लोग रहेंगे जो इसी इंडस्ट्री में रहेंगे। मैं क्या करेगा, मैं बोलेगा ठीक है मैं 5 लाख मास्क बनाता हूँ, मेरे दोस्त को बोलेगा देख ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट आया है, आधा काम मैं आधा काम तू, पैसा जो आएगा आपस में बांट के लेंगे। तो ऐसे टाइम पे मैं उससे डायरेक्टली आई विल परचेज मास्क। मास्क इज अवर फिनिश्ड प्रोडक्ट, मास्क इज अवर फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इसीलिए ध्यान में रख लेना, समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड अ मैन्युफैक्चरर कैन परचेज raw material, sorry, finished goods also. So generally, a manufacturer purchases raw materials, but sometimes he may purchase finished goods also. Now be alert, ट्रायल बैलेंस में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपको परचेजेस दिखता है तो मेरे को बताओ परचेजेस आप लोगों को समझना चाहिए। Hence, while preparing final accounts of a manufacturer, purchases will be transferred। कहाँ ट्रांसफर होगा मेरे दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो जो पहले परचेजेस आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते थे, अब वो कहां पर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। अब ध्यान से बताओ मुझे, मैन्युफैक्चरर के पास
कौन से आइटम का स्टॉक रहेगा? मैन्युफैक्चरर के पास कौन से आइटम का स्टॉक रहेगा? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आई एम गेटिंग वेरी लेट रेस्पॉन्स एक्चुअली। आप सोच रहे हो क्या सब लोग 24 की 24 जन? और इज देयर एनी अदर प्रॉब्लम? प्लीज शेयर इट फ्रेंड्स। You are unable to understand what I am asking? मैन्युफैक्चरर के पास किसका स्टॉक रहेगा? एक भी जवाब नहीं आया अभी तक। हेलो एवरीवन। लेक्चर कैंसिल कर दूं क्या? विष्णु मिश्रा बोला शेवटी। सिर्फ फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा उसके पास। हाफ वर्क डन रहेगा फिनिश गुड्स का। फ्रेंड्स, आर यू एबल टू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग? आज मजा नहीं आ रहा सिखाने को मेरे को, क्योंकि जवाब बहुत कम है, नहीं के बरोबर है। मैं हमेशा बोला है अकाउंट्स का लेक्चर में पूरा एनर्जी के साथ बैठो। नया कंसेप्ट सीखते वक्त ऑफ कोर्स तुम लोगों को नहीं आता है, मुझे मालूम है, बट एटलीस्ट जो आता है उतना तो कोशिश करो। देयर आर वेरी फ्यू आंसर्स व्हिच आई एम गेटिंग, नॉट एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग। आई विल टेल यू, ओमकार शिंदे ने आज सुबह से कोई जवाब दिया ही नहीं अभी तक। जॉइन का जवाब नहीं आया है। आई थिंक मीनाक्षी अय्यर का एक भी जवाब नहीं आया है अभी तक। व्हाई इज इट सो? आविष्कार का जवाब नहीं आया। सिद्धांत चौहान, अलमीरा, नो आंसर्स एट ऑल। व्हाई इज इट दिस वे? C Lakshmi has given one or two answers, very less answers rather. Are you all with me? Please type a yes or no. Are you facing any trouble? Why is there so less participation then? You can give wrong answers. मैंने कभी अमन प्रजापति का तो जवाब पहला आया अभी। कोमल का भी जवाब नहीं आया था अभी तक। मैं जानता हूं नया टॉपिक है, लेकिन तुम लोग उतना तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब एक टिपिकल मैन्युफैक्चरर का अगर मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं तो क्या होता है? तो फ्रेंड्स, एक मैन्युफैक्चरर का अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके पास कम से कम तीन चीज तो रहेगा ही रहेगा। एक रहेगा रॉ मटेरियल्स का गोडाउन, क्योंकि वो हमेशा सामान लाने के लिए वेट नहीं कर सकता है। जैसा भी ये कोरोना का पीरियड है, तो सामान रहेगा तो ही तो मैन्युफैक्चर कर पाएगा वो। दूसरा जगह रहेगा फैक्ट्री, और तीसरा गोडाउन रहेगा फिनिश गुड्स का। ध्यान में रख लेना, नॉर्मली क्या होता रहेगा, रॉ मटेरियल से सामान जाता रहेगा फैक्ट्री में, और फैक्ट्री से सामान निकलकर जाता रहेगा गोडाउन ऑफ फिनिश गुड्स। रिमेंबर वेल,
So this is go down of raw materials. You are, if we talk about a manufacturer, he may have two फिनिश को जो है हमेशा तीन प्रकार का सामान अपने पास रखता रहेगा. सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. वन फैक्ट्री. अभी भी आवाज ब्रेक हो रहा है क्या मेरा? आर यू एबल टू हियर? हो चॅट बॉक्स मध्ये टाकलंय सगळ्यांनी. काय आवाज ब्रेक होतोय त्यासाठी हो बोलतोय की आवाज येतोय व्यवस्थित? आवाज ब्रेक होतोय. आवाज ब्रेक होतोय. आता त्याला काय आता मला समजत नाही. Okay, let us hope that now it is clear. अभी क्लियर है? हाँ सर. Okay. So I was telling one small thing that कि एक मैन्युफैक्चरर को अगर आप लोग समझोगे ध्यान से तो उसके पास अलग अलग जगह इमेजिन मत करना, ये सब एक ही जगह पर रहेगा, लेकिन एक जगह पे उसके पास गोडाउन रहेगा किसका? रॉ मटेरियल्स का. एक जगह पे उसका फैक्ट्री रहेगा और एक छोटा सा रूम में उसके पास फिनिश गुड्स रखने का सामान रहेगा. मतलब अगर मैंने आपसे सवाल पूछा उसके पास स्टॉक कौन से रहेंगे, तो फ्रेंड्स आप लोगों का जवाब क्या रहना चाहिए? तो उसके पास दो चीज का तो स्टॉक हमेशा रहेगा. दो चीज का स्टॉक हमेशा रहेगा. कौन सा दो चीज का स्टॉक हमेशा रहेगा? एक स्टॉक रहेगा रॉ मटेरियल्स का और एक स्टॉक रहेगा फिनिश गुड्स का. ये दो चीज तो कंफर्म उसके पास रहेगा. डू यू एग्री विद दैट? प्लस अभी मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं. लेट अस एज्यूम कि फैक्ट्री में इस बंदे के पास 5 मशीन है. कितना मशीन है? देयर आर 5 मशीन्स. लेट अस से फॉर एग्जांपल इसका जो फैक्ट्री का काम है, मान के चलते हैं हम लोग कि ये कपड़ा मैन्युफैक्चर करता है. क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है? कपड़ा. अभी आप लोगों में से ये सब अभी प्रैक्टिकल में थोड़ा चीज बताने जा रहा हूं. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू माइट एक्चुअली नो अबाउट ऑल दिस प्रोसेसेस एंड अदर थिंग्स, बट लेट अस प्रिज्यूम दैट कपड़ा, कॉटन का कपड़ा. आप में से देखा है कॉटन, रॉ कॉटन? आप में से कितने लोगों ने देखा है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव सीन रॉ कॉटन. साक्षी ने देखा है. ओके, हु एल्स?
साक्षी, कॉटन कौन से कलर का होता है, कोई बता सकता है, या आपने देखा है तो कैन यू जस्ट लेट अस नो व्हाट कलर इज दैट ऑफ? कापूस हा कुठल्या रंगाचा असतो? व्हाईट. साक्षी, तुमने देखा है ना? ब्राउन. और किसी ने देखा है कॉटन? किसी ने नहीं देखा है. कॉटन, ये अगर आपने झाड़ से, कॉटन का झाड़ होता है, मालूम है? सबसे पहले ये तो मालूम है क्या? इतना तुम्हारा ज्योग्राफी अच्छा है क्या? हाँ. अभी हम लोगों के टाइम पे एडवांटेज क्या था ना दोस्तों, कि मेरे घर के पीछे जिधर मैं रहता था उधर एक कापूस का झाड़ था. अब वो जो झाड़ में बहुत सारे उसके फूल वगैरह लगते थे, कापूस नीचे गिरता था, उसको हम लोग उठा के खेलते थे आपस में. सो वी हैव सीन इट इन आवर चाइल्डहुड. इट इज एन पेल येलोइश इन कलर. उसको ब्राउन नहीं बोल सकते, थोड़ा येलोइश होता था, और व्हाइट तो नहीं रहता था बिल्कुल भी. लेकिन हम लोग जो कॉटन देखते हैं वो एकदम व्हाइट देखते हैं. सो दैट इज अ प्रोसेस. दैट इज अ प्रोसेस. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग प्रोसेस. ब्लीचिंग तो सब लोगों ने सुना होगा. तो ब्लीचिंग में क्या होता है, एकदम ब्लीच करके दिया जाता है, मतलब व्हाइटिश व्हाइट किया जाता है. तो कपड़ा बनाते वक्त सबसे पहला वो जितना कापूस आया रहता है, इट में बी मडी, इट में बी ब्राउन, इट में बी सो मेनी थिंग्स, तो उसको सबसे पहला ब्लीच किया जाता है, सफेद किया जाता है. ब्लीच होने के बाद, ठीक है, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो जो प्रोसेस है या वो जो ब्लीच्ड जो है कॉटन, उसको जो है उन लोग दे डू समथिंग कॉल्ड एज थ्रेडिंग. क्या करते हैं उसको? थ्रेडिंग. धागा में कन्वर्ट करते हैं. धागा में कन्वर्ट करने के बाद द थर्ड प्रोसेस विच हैपेंस विद द पर्टिकुलर कॉटन इज समथिंग कॉल्ड एज वीविंग प्रोसेस. वीव करना मतलब क्या? कपड़े को तुमने देखा रहेगा, 4 लाइन ऐसा रहता है, 4 लाइन ऐसा रहता है. एक मशीन में हैंडलूम रहेगा, weaving, ठीक है. After it is weaved, again there is something called as bleaching process, and then you get your cloth. जिनको मालूम रहेगा, भिवंडी में मैक्सिमम यही काम होता था. हैंडलूम्स वगैरह में जो काम होता था, सारे दुनिया भर से उसके उधर कॉटन आते थे, और वो कॉटन जो है इट वाज कन्वर्टेड इनटू क्लॉथ. फिर उसको उन लोग रिम्स वगैरह बनाकर फिर उसको बेचते थे. तो मेरे दोस्तों, अगर इतना सारा प्रोसेस है, लेट अस से दिस इज ऑल हैपनिंग इनसाइड अ फैक्ट्री. इज हैपनिंग इनसाइड अ फैक्ट्री. एक फैक्ट्री में 5 मशीनें, यानी गोडाउन हो गया जहां पर कॉटन है, फिनिश गुड्स हो गया जहां पर क्लॉथ है, और फैक्ट्री में ऐसे 5 मशीन है. मैं अपने जानकारी के लिए और थोड़ा क्लैरिटी के लिए लेटर से इसको नाम देता हूं M1, I call it as M2, M3, M यानी मशीन, M4 and M5. अब फ्रेंड्स, मान के चलो 31 मार्च हम अकाउंटेंट्स लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि हम लोगों को उस दिन करना होता है समथिंग कॉल्ड एज स्टॉक वैल्यूएशन.
गोडाउन में जाके हम लोग रॉ मटेरियल्स का तो जितना वैल्यूएशन दिख रहा है, जितना वैल्यू दिख रहा है उतना वैल्यू ले लेंगे, फिनिश गुड्स में जाके हम लोग उसका वैल्यू ले लेंगे। लेकिन फैक्ट्री में जाएंगे तो हर मशीन खाली पड़ा रहेगा कि उधर भी कुछ सामान पड़ा रहेगा? प्लीज टेल मी इन योर चैट बॉक्स, विल देयर बी एनी गुड्स और विल देयर बी वेकेंट? एक ही जन का जवाब आया मेरे को। स्टॉक वैल्यूएशन करने को गए तो वहां पर मशीन एकदम खाली पड़ा होगा कि उसके अंदर भी सामान रहेगा। सब लोग मानते हैं कि सामान रहेगा, राइट? ये जो सामान पड़ा है, अभी मैंने छोटा सा फैक्ट्री लिया, 5 मशीन लिया, कुछ फैक्ट्री में 10 मशीन हो सकते हैं, कुछ फैक्ट्री में 15 मशीन हो सकते हैं, कहीं कहीं पर 20 मशीन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हर एक मशीन में कितना सामान पड़ा है उसको भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। और ये जो गुड्स है, ना ये रॉ मटेरियल है ना ये फिनिश गुड्स है, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो पहला रहेगा उसके पास स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, दूसरा रहेगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण उसके पास हो सकता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्या रहेगा उसके पास? स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। व्हाट इज वर्क इन प्रोग्रेस? वर्क इन प्रोग्रेस refers to nothing but the goods which are lying in the factory. The goods which are lying in the factory are called as work in progress. तो ये बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। What is work in progress? Work in progress मतलब नाम से पता चलता है वो गुड्स जिस पर अभी पूरा काम हुआ नहीं है, ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। बोलो ये बात समझा क्या? यानी एक ट्रेडर के पास एक ही स्टॉक होता है, ट्रेडर के पास एक ही स्टॉक होता है, वो है फिनिश गुड्स। लेकिन मैन्युफैक्चरर के पास कम से कम 2 रहेगा, रॉ मटेरियल रहेगा, फिनिश गुड्स रहेगा। लेकिन तीसरा भी एक महत्वपूर्ण आ सकता है, और वो तीसरा कौन सा आ सकता है? दैट इज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मैन्युफैक्चरर को कैसा पहचानते हम लोग? ये एक आइटम स्टॉक देखकर आप पहचान सकते हो कि ये फाइनल अकाउंट ट्रेडर का है कि मैन्युफैक्चरर का। ट्रेडर का रहेगा तो ट्रायल बैलेंस में एक ही स्टॉक रहेगा, दैट इज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर है तो उसके पास कम से कम 2 या देखने जाओ तो 3 गुड्स भी हो सकता है। व्हाट आर द 3 गुड्स? रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स and work in progress. Do you all agree with this? Now when we talk about the accounting effect, raw materials everybody knows by this time, you might be clear, it will be recorded in manufacturing account debit side. Opening stock अगर हम लोग बात करें, closing stock manufacturing account credit side. फिनिश गुड्स पहले भी ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होता था, अभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगा। मेरे को बताओ, ये वर्क इन प्रोग्रेस का क्या करोगे, कहाँ लिखोगे? वर्क इन प्रोग्रेस यानी मशीन में लगा हुआ गुड्स कहाँ पर है? ये फैक्ट्री में है। तो बिकॉज इट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, आपके हिसाब से कहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए? प्लीज टाइप इन योर चैट बॉक्स। पहले का याददाश्त छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग पहले का याद रख के बोल रहे हो। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ फिनिश गुड्स ही आता है मेरे दोस्तों। पहले ट्रेडर के पास सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स होता था, अब मैन्युफैक्चरर के पास फिनिश गुड्स के अलावा मटेरियल्स भी है, फैक्ट्री भी है। तो याद रखना, फैक्ट्री से रिला हुआ कोई भी चीज जो है, नाउ इट विल बी रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो डेबिट साइड,
क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो क्रेडिट साइड। नया चीज सीख रहे हो, वापिस समझ लेना अच्छी तरीके से क्या क्या बोला हम लोगों ने। लेट अस ट्राई टू रिवाइज। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट समझने के लिए हमने बिजनेस को समझ के लिया। बिजनेस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर। व्हाट डज अ ट्रेडर डू? ही बाइज एंड सेल्स गुड्स। व्हिच गुड्स? फिनिश्ड गुड्स। ही कैन बी होलसेलर, रिटेलर, सुपर स्टॉकिस्ट, एनीबडी. What does a manufacturer do? Manufacturer buys raw materials, converts it into finished goods and sells finished goods. The place where raw materials is converted into finished goods is called as factory. So मैन्युफैक्चरर रहेगा तो उसको एक अकाउंट, एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना पड़ता है, वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. क्यों बनाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? टू कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द sum total of all expenses incurred to convert raw materials into finished goods. So ये raw materials को finished goods, तो raw material का खर्चा और फैक्ट्री का होने वाला सारा खर्चा, ये सब को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखेंगे. So generally a manufacturer purchases raw material, but sometimes he may purchase finished goods also. Hence, while preparing final accounts of a manufacturer, purchases will be transferred to manufacturing account debit side. अब मेरे को सोच समझ के बताओ, अगर परचेज ऑफ फिनिश गुड्स आए तो कहाँ लिखेंगे दोस्तों? परचेज ऑफ फिनिश गुड्स आए तो कहाँ लिखेंगे? यस, दैट विल बी रिकॉर्डेड. जो फिनिश गुड्स से रिलेटेड है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा. फिर मैंने आपके सामने एक छोटा एग्जांपल लिया कि एक मैन्युफैक्चरर के पास तीन चीजें हो सकती है. भले ही जगह एक ही हो, लेकिन उसमें तीन भाग हो सकते हैं: गोडाउन ऑफ रॉ मटेरियल, एक्चुअल फैक्ट्री एंड गोडाउन ऑफ फिनिश गुड्स. मैंने एक कपड़ा बनाने का एग्जांपल लिया, बहुत ही छोटा हैंडलूम इंडस्ट्री का मैंने बात किया, जहां पर छोटे छोटे प्रोसेसेस होते थे. तो हमने 5 प्रोसेसेस का बात किया. ये समझ के लिया कि मैन्युफैक्चरर के पास कम से कम 2 स्टॉक हो सकते हैं, कभी रहा तो 3 स्टॉक भी रहेगा. अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ. बोलो, मैन्युफैक्चरर क्या बेचता है? डज ही सेल रॉ मटेरियल और डज ही सेल फिनिश गुड्स? So sales given in trial balance will be transferred to, कहाँ ट्रांसफर होगा सेल्स? यस, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड. तो अभी ध्यान में रखना, परचेज चला गया मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन सेल्स आएगा ट्रेडिंग में, क्योंकि सेल्स जो हो रहा है इट इज ऑफ ऑलवेज finished goods. Now if we talk about direct expenses, what are direct expenses? Direct expenses are those expenses which are related to purchase of goods or production of goods. ये हमने सीखा है. अब परचेज ऑफ गुड्स क्या खरीद रहे हैं हम लोग? हम लोग अभी खरीद रहे हैं रॉ मटेरियल, और प्रोडक्शन में होने वाला जो भी खर्चा है हो रहा है फैक्ट्री में. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन. हेंस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड टू, कहां पर आने वाला मेरे दोस्तों? इट विल बी ऑल डेबिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, वेजेस, कैरेज इनवर्ड. इसके अलावा तुम लोगों ने सीखा है लाइट, गैस एंड वाटर. तुम लोगों ने सीखा है रॉयल्टीज पेड, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस. सुना है ना आप लोगों ने ये सब? कोल गैस एंड वाटर होता है, नॉट लाइट गैस एंड वाटर. तो आपको कोल गैस एंड वाटर होता है.
तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रख लेना, शायद 12th पढ़ाई करते वक्त या अभी इतने देर में जब हम लोग अकाउंट सीख रहे थे, वहां पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, फैक्ट्री एसेट्स का एकदम सिंपल वर्ड लेता हूं। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी मेरे दोस्तों, ट्रेडर, पहले अपन ने जितने फाइनल अकाउंट्स किए थे वो सब ट्रेडर के थे। तो एक्चुअली ना मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ट्रेडर के पास कोई दुकान में आपने कोई मशीनरी देखा होगा ना, तो वो होगा कोल्ड स्टोरेज मशीन, जो बेचने के लिए रखा गया है, मतलब सामान अच्छा रहे इसके लिए। वो प्रोडक्शन वाला मशीनरी नहीं होगा। मशीनरी एक्चुअली कहाँ होता है? मैन्युफैक्चरर के पास ही होता है। फर्क समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस वेरी केयरफुली। पहले अभी 11th 12th में जो हम लोग करते थे और अभी हम लोग जो करने वाले हैं उसमें बहुत फर्क है। अभी हम लोग सच्चाई के तरफ ज्यादा नजदीक जा रहे हैं। मशीनरी ये ट्रेडर के पास होना ज्यादा स्वाभाविक है कि मैन्युफैक्चरर के पास होना ज्यादा स्वाभाविक है मेरे दोस्तों? हु विल हैव मशीनरी? मैन्युफैक्चरर। So depreciation on machinery, because it is based on factory asset, it should be charged to manufacturing account. Remember my dear friends, यानी आपका ना एक बहुत बड़ा आइटम P&L अकाउंट से जंप मारने वाला है towards मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और वो है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। तो कल चल के डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर आया तो कहां लिखोगे आप लोग? कल चल के डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर आया तो कहां लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मैंने हर सारा डेप्रीसिएशन चेंज होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं। फैक्ट्री एसेट्स के ऊपर कल चल के आया डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, तो वो आएगा तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। एम आई क्लियर विद दिस? So depreciation on machinery या depreciation on factory building ऐसा कुछ आया, ये सब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। One very important thing that you may see is sale of scrap. Sale of scrap means amount realized after utilizing raw materials. I would say sale of scrap means sale of raw materials after it is used for manufacturing. Now what is that? Sale of raw material after it is used for manufacturing. अगर हम लोग एक गन्ने का जूस सेंटर जाते हैं, if we go to a place जहां पर हम लोगों को गन्ने का जूस मिलता है, वहां पर रॉ मटेरियल गन्ना होता है, जूस निकालने के लिए मशीनरी में डाल दिया जाता है, जूस एक्सट्रैक्ट होता है, उसके बाद जो मोलासेस बचता है, याद रखना फ्रेंड्स, वो दुकान में कितना भी मक्खी आने दो, लेकिन वो दुकानदार उसको संभाल के रखता है। क्यों संभाल के रखता है रे? क्यों संभाल के रखता है? सेल करने के लिए। वो जो कचरा दिखता है अपने को, उसको भी यूज किया जाता है, कभी दारू के भट्टी में यूज करने के लिए। बोलने का मतलब है कोई और प्रोडक्शन के लिए उसका उपयोग होता है। कुछ लोग उसको चारा करके लेके जाते हैं, तो
तो बोलने का मतलब ये है कि कभी कभी रॉ मटेरियल्स यूज होने के बाद भी उसका कुछ सेल वैल्यू बचता है। जैसे प्लास्टिक का जो मैन्युफैक्चरर्स लोग रहता है, प्लास्टिक का जितना रिक्वायरमेंट है उतना होने के बाद उसमें से जो बच गया जो रॉ मटेरियल है उसको उन लोग बेच देते हैं। कहीं कहीं पर तुम लोग देखोगे स्टील इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है। तो सेल ऑफ स्क्रैप मीन्स बेसिकली सेल ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। नाउ सिंस इट इज सेल ऑफ रॉ मटेरियल्स इट विल बी क्रेडिटेड। क्रेडिटेड कहाँ पर होगा? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो बाई चांस अगर आपको कहीं सेल ऑफ स्क्रैप आया तो उसको आपको कहाँ लिखना है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड। सो दिस इज समथिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, आप लोगों को याद रखना है। रियाज सर मुझे और एक 5 से 10 मिनट लगेगा, सॉरी स्टार्टिंग में हम लोग को थोड़ा बाकी का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, वी गॉट लेट, तो होप यू विल एडजस्ट। रियाज सर? यस सर, नो इश्यू सर। हाँ। तो अगर हम लोग अब नए तरीके से समझे कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे दिखेगा, हाउ विल ए मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट लुक लाइक, प्रोफॉर्मा बनाने की कोशिश करूं मैं, तो अभी हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बहुत सारा चीज तो अभी आप लोग को मालूम पड़ गया दोस्तों। यू कैन शेयर एज यूजुअल, आप 2 रुपीज का कॉलम बना सकते हो, बेटर आई विल ऑल्सो प्रिपेयर सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर everyone. So we will say particulars rupees particulars rupees. Now friends, raw materials और वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक, ये दोनों भी हम लोगों ने सीखा। दिस विल बी डेबिटेड टू आवर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो टू ओपनिंग स्टॉक यू कैन हैव रॉ मटेरियल्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। Total amount will be debited. Okay, इसके अलावा you can see purchase of raw materials. Purchase आया तो उसमें से definitely क्या लेस हो सकता है? Purchase returns. अलावा सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना आप लोग जानते हो, यू कैन हैव वेजेस, यू कैन हैव कैरेज, हमारा आ सकता है फ्रेट, हमारा पावर एंड फ्यूएल, you can have something like your coal, gas and water। कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन ने सीखे थे। इसके अलावा अभी मैंने बताया डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, सब जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आता था बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू परचेजेस और रिलेटेड टू प्रोडक्शन। नाउ एवरीथिंग विल बी डेबिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्रेडिट साइड में आते वक्त एक ही आइटम आएगा, वो है बाय सेल ऑफ स्क्रैप। क्या रहेगा तो हमको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा एंड में आप रिकॉर्ड करोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। जैसे ओपनिंग स्टॉक के बारे में बताया था, क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पर 2 चीज का हो सकता है।
एक रॉ मटेरियल्स और दूसरा वर्किंग प्रोग्रेस। टोटल लोगे तो डेफिनेटली डेबिट का ही टोटल ज्यादा दिखेगा, क्योंकि हमने खर्चा वगैरह बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किया है। और जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरीड फॉरवर्ड। दैट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरीड फॉरवर्ड। दिस विल बी द अमाउंट। This will be your balancing figure. I'm just marking it as red so that you can identify this is a balancing figure. तो अगर हम लोगों ने इतना बना लिया तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, इसको अगर अंदाजा लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, यू कैन अंडरस्टैंड। आएगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। परचेजेस होने का चांसेस कम है, बट अगर क्वेश्चन में अगर दिया बाय चांस यू मे हैव परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। हाँ, ये लॉजिक भी याद रखने का। अगर परचेज ऑफ फिनिश गुड्स है और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई खर्चा आया तो आप लोगों को उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ही रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, सबसे महत्वपूर्ण आइटम आएगा वो है सेल्स। आइटम आएगा सेल्स। सेल्स में से ऑब्वियसली यू विल हैव माइनस सेल्स रिटर्न्स। नेट सेल्स बचेगा, that will be transferred to outer column. Then you may have something called as by closing stock of finished goods. दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में एज यूजुअल क्या होगा, क्रेडिट में सेल्स होने की वजह से क्रेडिट का टोटल जो है वो ज्यादा आएगा। एंड द डिफरेंस यू ऑल नो, ऑन द डेबिट साइड यू विल कॉल इट एज ग्रॉस प्रॉफिट। So what has happened in short is the role of trading account is compromised to a great extent when we prepare manufacturing account, क्योंकि major role is now taken care by manufacturing account। बोलो क्या ये बात आप लोगों के समझ में आया क्या?